One can understand the importance of this project by taking one look at the kind of preparations that are underway only for the foundation laying ceremony. Apart from the fact that it promises to usher in development in the area, promises jobs, also remember the arithmetic of this entire region, one which has been rocked by the recent anti-farm law protests. The area of western Uttar Pradesh always has remained very, very critical when it comes to electoral fortunes of any party. And this time around, with the mixture of Vikas as well as the brand name of the Prime Minister and the Chief Minister, at least the BJP is certainly taking absolutely no chances. The Jewar Airport is a project that's one of the flagship projects for the Yogi Adityanath government. Its foundation laying ceremony will be done by the Prime Minister in hours from now. The reason this is extremely critical is because the government wants to show that in addition to everything else, they are pushing ahead of the development issue in Uttar Pradesh. Which is why within the last 30 days, the focus has been on at least 3 major infrastructure projects in Uttar Pradesh. First, it was the inauguration of the Purvanchal Expressway and the site of military aircraft landing on the highway strip. Then the Kanpur Metro's trial run was flagged off. People in the leather town will likely get to use it by the end of this year. And finally, it is the Jewar International Airport that is being aimed at giving a huge boost to the entire western Uttar Pradesh region. The main focus and the interest, of course, is to find out what the eventual airport building, this entire airport, is going to look like. And for that, this scale model has been prepared. Keep in mind that this is a 1:3000 scale that has been used for this airport model. Starting with the approach, this is the Yamuna Expressway, which is going to give access. It connects the National Capital Region to the airport building. Here you have the main airport terminal. Keep in mind that this is only phase 1 of the entire project. This is going to be completed in many phases. Phase 1, which is going to be completed in 2024, only one runway, which is the first runway, is going to be open for operation. So you've got the runway over here. Then right next to it, you'll have the second runway, which will also open over the next couple of years. Here you see all the parking bays, the hangars, they are all present here. Also note that the idea is not to just have one airport, but to have an entire aero city around it. So if this is the airport terminal, here you will see the maintenance bays. Incidentally, this is one of the very few facilities in India where you've got everything integrated. You've got the takeoff and landing facilities, you've got the cargo operation, and also the maintenance and overhaul, all happening within one area itself. This is the entire aero city that you see, which is going to have various hotels, malls, shops, and a lot of talk about how this is then going to lead to employment generation. That is as far as phase 1 is concerned, where you see 2 runways being operationalized. Subsequently, you are going to see a much larger construction taking place. Remember, this is spread over an area of 1400 hectares. So 4 more runways eventually are going to come up. What is the capacity of this airport like? It is geared to have a capacity of as many as 70 million people per year. Keep in mind that that's almost half of the total capacity of annual capacity of airports across the country. So in scale and size, there is no doubt that this is a massive project. Again, here, if you see in phase 2, you've got the airport hangars over here. This is the commercial area where eventually hotels, etc. are going to come up. And this here, right here in the center, is the main airport building. And
in designing the airport also, a lot of cultural elements are being incorporated. In addition to everything else, this airport is also being projected as a zero emissions airport, where carbon emissions are going to be offset. However, the tech is also being complemented with culture. Interesting details have been added to the design of the Noida International, Jewar International Airport as well. For example, the way it has been designed, there are specific design elements which have been added keeping a cultural angle in mind. For example, the steps over here are being made as a replica of the steps which are seen at the Assi Ghat in Varanasi. In addition to that, there are also glimpses of Ayodhya which is being promised in the overall architecture of how the airport is going to look. So one standout feature of this airport also is that it has actually come to be in a span of 4 years, from being proposed in 2017 to 2021, where the Shilanyas is being done, the ground laying ceremony is happening. ये कैसे मुमकिन हो पाया इतने सालों? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका विजन देखा, उन्होंने कंसेप्चुलाइज किया और भारत सरकार ने इसमें इतना सारा सहयोग किया माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, और सबसे ज़्यादा यहाँ के स्थानीय किसानों का सहयोग था। उन्होंने आगे बढ़ कर के अपनी लैंड दी, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस के साथ जो एनओसीज थी सारी, चाहे वो मोका के एनओसी हो, चाहे डीजीसी के एनओसी हो, चाहे एरा की एनओसी हो, चाहे डिफेंस की एनओसी हो, होम की एनओसी हो, यहाँ तक कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी टाइम से हो गया। आज की तारीख में इस एयरपोर्ट की किसी प्रकार की कोई एनओसी पेंडिंग नहीं है और ज़मीन पर रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट भी हो चुका है। तक की विकास की बात है, इसको देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बताया जा रहा है। इसके क्या स्टैंड आउट फीचर्स हैं, आप हमें बता सकते हैं? देखिए, ये 13 से 34 सेक्टर में पहले चरण का जो शिलान्यास हो रहा है, इसमें तो केवल 2 रनवे बनेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर एक एमआरओ है। कार्गो का ये बहुत बड़ा हब होने जा रहा है, क्योंकि अभी जो आईजीआई का कार्गो है उसका 51% गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से जाता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर गौतम बुद्ध नगर में ही एयरपोर्ट बन रहा है तो सारा का सारा कार्गो मोर देन 50% विल ऑटोमेटिकली कम टू दिस एयरपोर्ट। और यहाँ पर पैसेंजर के साथ साथ कार्गो बहुत बड़ा एक फैक्टर होने जा रहा है। इसके अलावा अभी इसमें 5 रनवे की पूरी योजना है और उसके साथ एमआरओ है। अभी देश में एमआरओ बहुत छोटे स्तर पे केवल कुछ 1-2 एयरपोर्ट में, हैदराबाद में। एमआरओ का हमारे दर्शकों के लिए समझा दें। एमआरओ मतलब यहाँ पे एक ही जगह पे मेंटेनेंस और ओवरहॉल वगैरह सब हो सकता है। मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। तो ये सुविधा अभी कोलंबो में है, सिंगापुर में है, जो बड़ी सुविधाएं हैं, या बोइंग जैसे सियाटल में बनता है तो उसके हब में जाता है, या एयरबस पेरिस में बनता है तो वहाँ जाता है। अभी बहुत छोटे स्तर का, छोटे चेंजेस के लिए, नट बोल्ट के लिए अभी यहाँ इंडिया में काम होता है। तो एक एमआरओ एक बहुत ग्रोइंग बिजनेस है जिसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और एविएशन रिलेटेड इंडस्ट्री आती है। तो वो अभी अपने यहाँ एक बड़ी चीज़ है जो आनी शेष थी, तो इसलिए उस पर काम हो रहा है और बहुत सारी कंपनियों ने काफ़ी रुचि दिखाई है। ऑलरेडी हम लोग के साथ बात चल रही है एमआरओ के लिए बहुत बड़ी बड़ी देश की विदेशी कंपनियों से। तो यहाँ 5 रनवे और एमआरओ लाया जाएगा। इस मामले में अपने आप में अनूठा होगा। और पैसेंजर कैपेसिटी भी यहाँ जब ये बन के 5 रनवे तैयार होंगे तो 2 से 25 मिलियन की कैपेसिटी होगी, जो अपने आप में अनूठी है, दुनिया में कहीं नहीं होगी। सर ये बताइए कि यहाँ पे डिज़ाइन एलिमेंट्स के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है कि यहाँ पर वाराणसी और अयोध्या की झलक मिलेगी। किस तरीके से, कैसे जो सांस्कृतिक पहलू हैं वो इस एयरपोर्ट में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं? देखिए, जब इसका प्रेजेंटेशन हुआ था, इसका डिज़ाइन का ज्यूरिक ने किसी को अवार्ड किया था, तो इसका प्रेजेंटेशन हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें देश के और प्रदेश के सांस्कृतिक धरोहर और उसकी इनरिचनेस को लाना चाहिए, चाहे वो बनारस के घाट हों, चाहे वृंदावन में मथुरा आर्ट हो, चाहे और भी चीज़ें जो देश के धरोहर या भारत में जो और विशेषताएँ हैं, तो उन सबको समाहित करते हुए एयरपोर्ट बनना चाहिए। यमुना के किनारे बन रहा है, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के क्षेत्र में बन रहा है, तो गंगा यमुना का भी यहाँ होना चाहिए, संगम भी यहाँ आना चाहिए, ब्रज क्षेत्र की अपनी विशेषताएं आनी चाहिए। तो उसको रीडिज़ाइन किया गया और सारा इस तरह से प्लान किया गया है कि मॉडर्न तो होगा ही, जीरो कार्बन इमिशन भी होगा, जो कि अभी देश में कोई नहीं है। चूँकि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में डिक्लेरेशन किया कि भारत 2070 तक जीरो कार्बन इमिशन के लिए तैयार है, तो उस दिशा में एयरपोर्ट बढ़ने जा रहा है। ये 100% जीरो कार्बन इमिशन का एयरपोर्ट होगा और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति और उसकी धरोहर को सजोएगा अपने आप में। But it's not as if the project didn't have its own set of problems. It's set bang in the middle of this agricultural belt of western Uttar Pradesh. Land acquisition historically is a problem here. Now there are people who are accusing the government of not coming good on their promise of compensation and rehabilitation. Even Priyanka Gandhi
has taken up the issue to question. Whenever any big ticket project like this comes up in an area, its importance is not just technologically about advancement, but also has a very important political angle to it. Also remember that the sheer volume, the sheer area of land that has been acquired to make such a project possible is in itself quite incredible. How was that made possible, and what were the problems that were also encountered along the way? Somebody who has been involved personally in the entire process is the MLA of the area, धीरेन्द्र सिंह. सर ये बताइए पहले कि इस जो प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है विकास के नजरिए से और पॉलिटिक्स के नजरिए से. देखिए 2017 में उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी आए तो यहाँ की जनसंख्या को देखते हुए इस उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास कैसे हो, उसके लिए कौन सी जगह उपयुक्त होगी, यह बहुत बड़ी बात थी. विधानमंडल दल की पहली बैठक में ही मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि हमें 10 लाख रोजगारों का सृजन करना है. हम जेवर में एयरपोर्ट बनाकर जो बहुत दिन से लंबित है, बहुत सारे रोजगारों का सृजन उत्तर प्रदेश के लिए कर सकते हैं. तो इसकी फाइलें आगे चलने लगी. मुख्यमंत्री ने इसे बहुत कमिटमेंट के साथ भारत सरकार से स्वीकृत कराया और उसके बाद एक समय ऐसा आया कि जब किसानों ने सहमति देने से बंद कर दिया और ये कयास लगाए जाने लगे कि यह एयरपोर्ट हरियाणा जा सकता है, तो उस वक्त मुझे सत्र छोड़कर आना पड़ा. मैंने किसानों को समझाया, देखिए देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए और हम आज तक बाहर नौकरी करने जाते हैं हरियाणा या दिल्ली. हमारे नौजवानों के लिए कोई यहाँ साधन नहीं है रोजगार के लिए. किसानों को क्यों प्रॉब्लम थी यहाँ पर अपना जमीन देने से, क्यों हिचकिचा रहे? वो था चूंकि यहाँ शहरी क्षेत्र था, ये किसान चाहते थे कि ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से उन्हें मुआवजा मिले, लेकिन इंडस्ट्रियल एक्ट की धारा 12 में इम्पोज हो जाने के बाद में शहरी क्षेत्र घोषित जब हो जाता है तो नए भूमि अधिग्रहण कानून में यह प्रावधान है कि 2 गुना मुआवजा शहरी क्षेत्र में मिलेगा. किसानों का मानना था कि वो हमें 4 गुना मुआवजा दिया जाए, तो कानूनन यह संभव नहीं था. इसलिए मुझे उन्हें समझाना पड़ा. मैंने मुख्यमंत्री से भी किसानों की वार्ता कराई, मैंने मुख्यमंत्री को बताया, उनकी समझ में बात आई. चूंकि अगर 4 गुना मुआवजा होता तो फिर प्रोजेक्ट की वायबिलिटी नहीं रहती, ये हिसार जा सकता था. मुख्यमंत्री ने 500 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से किसानों का मुआवजा बढ़ाया. उसके बाद जब किसानों को समझाया गया कि अगर यह प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया तो फिर इस क्षेत्र में वही पुरानी हालत हो जाएगी, बेरोजगारी, और उसके बाद कोई भी बड़ी योजना इस क्षेत्र में नहीं आएगी. जमीन अधिग्रहण का मामला है, ये पहली बार इस इलाके में ऐतराज लोगों ने नहीं जताया है. भट्टा परसौल को आप अच्छे से जानते हैं. 10 साल पहले हुआ था भट्टा परसौल का पूरा एजिटेशन. वहां पर भी विकास की बात की गई थी जब मायावती जी यहाँ पर जमीन अधिग्रहण करना चाहती थी. तो उस वक्त से इस वक्त के बीच में क्या बदलाव है, जब लोगों की जाने गई थी जमीन अधिग्रहण को लेकर के, और आज 10 साल बाद उसी जमीन पर और उसी जमीन के आसपास एयरपोर्ट बन रहा है? यही एक विषय बन गया है किताब लिखने का कि जिस इलाके में 2 इंच जमीन के लिए गोलियां चलती थी, आमने सामने प्रशासन से 2-4 होती थी. क्योंकि मैं उस आंदोलन में रहा था, मैंने ये बिगुल उठाया था किसानों के लिए. तो जब मैं किसानों के बीच में गया तो मैंने ये महसूस किया 2010 में और आज के बीच में कि देखिए अगर हम औद्योगिक विकास नहीं लाएंगे तो हम रोजगारों का सृजन नहीं कर सकते. यही बात हमने किसानों को समझाई कि अगर यह एयरपोर्ट भी हमारे हाथ से चला गया तो उसके बाद यह क्षेत्र अंधकार में होगा. चूंकि 2017 से पहले जेवर का जो क्षेत्र है वहाँ कोई भी उद्योग धंधे नहीं लगाता था अपने, चूंकि भट्टा परसौल यहाँ हुआ था. तो एक हमने प्रयास किया औद्योगिक माहौल देने का और वो किसानों का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा. तो आपने जो उनको मुआवजा मिला वो बढ़ाया, और खुद योगी आदित्यनाथ भी यहाँ आकर के मिले थे लोगों से. पर जो अभी भी कुछ विस्थापित लोग हैं उनका कहना है कि 2 उनको मुख्य प्रॉब्लम्स हैं. एक, सबको जो मुआवजा मिलना था नहीं मिला है, और दूसरा जो नौकरियों का वादा किया गया था वो क्योंकि अभी तक एयरपोर्ट बना नहीं है तो वो लोग अभी भी बेरोजगार हैं. उनके लिए क्या किया जा रहा है? जैसा कि 611 किसानों को हमने चिन्हित किया था जिनके प्रकरण थे, जिन्हें मुआवजा नहीं मिला था. कुछ मकानों के प्रकरण थे, कुछ उनके बोरिंग और पेड़ों के प्रकरण थे.
तो 611 किसानों को साथ लेकर प्रशासन को मैंने तहसील में बुलाया और वार्ता की। उसके बाद से तकरीबन हम 450 प्रकरण सॉल्व करा चुके हैं। बाकियों के लिए भी कल रात को भी 11 बजे मेरे पास एक सूची आई है जिसमें किसानों के खातों में पैसा डलवाया गया है। तो मैं निरंतर प्रयत्नशील हूं कि किसानों से जो वायदे किए गए उन्हें हम अंजाम तक पहुंचा पाएं और किसी भी किसान को हम अगर कोई चाराजोई है या उसे परेशानी है तो व्यक्तिगत तौर से मैं उनकी समस्याओं के लिए प्रयत्नशील रहता हूं। So it's just a stone's throw from here, which is where the land of the villagers here has been acquired for where the new airport is coming up. But in addition to the land that they have been given elsewhere, now what has been done is, according to the rules, if you have say 500 meters of land, you will be given half of that, and in addition to that, every adult in the family will be given another 50 meters of land, and the adults will also be given monetary compensation as well as a job. What really is the situation? The government claims that most of the claims have been settled here. आप ये बताइए कि ये जो यहाँ गांव का मुआवजे का पूरा सिस्टम था, क्या क्या मिला है आपको? सारा कुछ मिला जी। मुआवजे में जो जमीन गई उसको पैसे मिले, हाँ। प्लॉट मिले, हाँ। और जो 18 साल प्लस है उनके लिए 6-6 लाख रुपए वो भी मिले। तो हर जो सदस्य 18 साल से ऊपर है उसको 6 लाख रुपया मिला है और 50 मीटर का प्लॉट हर एक 50 मीटर का हर एक मिला है। तो जैसे घर में अगर आपके 2 बेटे हैं तो उसको 50-50 मीटर का प्लॉट मिला है। जैसे मेरी जमीन 300 मीटर है, हाँ। तो 150 मीटर होगी मेरी, आधी दी है वहाँ की, आधी दी है अच्छा। में। और अगर जो मेरी जमीन 100 मीटर होती, हाँ। और मेरे तीन बेटा हैं, हाँ। तो सबको 50-50 मीटर ही मिलता। अच्छा, यानी कि अगर आपकी 300 मीटर जमीन होती तो 150 मीटर तो ऐसे मिली मुआवजे के तौर पे, और हर बेटे के लिए 50-50 मीटर की जमीन। उसी में एडजस्ट है सब। अच्छा, हाँ, जैसे कि कम होती तो वो अपनी उड़ दे दी है। हाँ। जैसे कि हम 4 हैं, हाँ। और 4 हैं कि हमारी 4 हम ले रहे 100 मीटर में, तो हमें वहाँ मिली है 200 मीटर। अच्छा, हाँ, जिसकी ज्यादा ही उसको उसी में एडजस्ट कर दिया है। और साथ में पैसा भी मिला है जो 18 साल 6.5 लाख रुपए हर आदमी के लिए 6.5 लाख 61 सबके लिए, सबके लिए। जो 18 तो साल। आप लोगों को मिला है, आपकी जमीन गई है इसके लिए? जमीन गई है, पैसा भी मिला है। अच्छा, तो अभी आप कहाँ, आपका अपना नया घर बना लिया है आपने? हाँ, वहाँ चुनाई चल रही है। अच्छा, आपकी भी जमीन गई है बाबा? साहब, अच्छा, हाँ जी। तो क्या मिला है आपको? हमको पैसे मिले, प्लॉट मिले, प्लॉट बना रहे हैं और 6.5 लाख रुपए मिले। अच्छा, ये पूरी वो मिली है। पर यहाँ पे कई जैसे नौजवान लोग भी हैं, आपको ये भी बोला गया था कि अगर आप चाहें तो पैसे की जगह नौकरी, तो नौकरी का क्या हो रहा है, क्या मतलब सिचुएशन? नहीं, कुछ जो नौजवानों ने नौकरी भी ली है, कुछ ने पैसे भी लिए। उनको 50,000 और भी दिए हैं। हाँ? जैसे नौकरी का जिसने फार्म भरा है, हाँ। तो 50,000 रुपए उसे और भी दिए हैं। नौकरी तो दी है, प्लस नौकरी तो कही है, और उससे 50,000 रुपए और भी दिए गवर्नमेंट ने। तो ये बताइए जमीन का, क्योंकि यहाँ पर तो कृषि प्रधान इलाका ही है, यहाँ पर आप सबकी खेती भी है, खेत भी यहाँ पर है, तो वैसे एयरपोर्ट के लिए जमीन देने का कैसे सोचा आपने? तो किसान और अपनी जमीन तो इतनी आसानी से देता नहीं है ना। देखो जी, यूँ सोचो कि हमारे जो नौजवान साथी हैं, हम सफर जो हैं, उनको यहाँ रोजगार मिल जाएगा। हमारी इस जमीन का जो डेवलपमेंट जो हो रहा है बहुत अच्छे से होगा। हमारे बच्चों की जिंदगी सुधरेगी, इससे हमें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, 2 पैसे इससे कमा सकते हैं। यही अच्छा लगा तो जमीन दे दी। अंकल, आप बताइए कि यहाँ पर आप खेती करते आए हो, तो ये एयरपोर्ट के लिए क्यों जमीन दी आपने? एयरपोर्ट के लिए जमीन इसलिए दी है हमने कि बच्चों का भविष्य आगे के लिए सुधरेगा, और हमें पैसा सरकार ने दे ही दिया। हमारा क्षेत्र चमक जाएगा। जेवर टप्पल के नाम से जाना जाता था पहले, अब वो एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा जेवर। हमारे मंत्री विधायक जब लेके आए यहाँ, तो हम उनसे कैसे मना करें? हम बहुत राजी हैं एकदम, सबको राजी से दी है जमीन। पर एयरपोर्ट से, जैसे खेत होगा, खेत में आप अपना फसल उगाओगे, एयरपोर्ट से आप लोगों को क्या फायदा है? एयरपोर्ट सारा यहाँ विकास है, इतना पूरे हमारे रौनक बदल गई, यहाँ की सब माहौल बदल गया। बिल्कुल ऐसा बढ़िया रहा। यहाँ कोई कैसी भी लड़ाई, हमारे विधायक जी ने
पूरा सहयोग करा है। विधायक जी की वजह से लोगों ने भी कह दी कि हमारी कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे कई लोग हैं जो कि अभी भी कह रहे हैं कि हम खुश नहीं हैं या हमें मुआवजा नहीं मिला है। क्या आप में से कोई ऐसे लोग हैं जिनको कोई तकलीफ हुई है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुआवजा सबको मिला है। सब मिला है। ये गलत बोल रहे हैं, कुछ लोग होते हैं सब एक से नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको मिला। जितना ज़मीन गई है उसकी उसी के हिसाब से उनको मुआवजा मिला है। जितना उनका घर था घर का हिसाब मिला उनका पूरा सब कुछ। आर में जो जेवर बसे हुए हैं उस जगह ज़मीन मिली है, फिर बट पैसा भी दिया है सरकार ने। ऐसा कुछ नहीं है, सारा कुछ है। तो आगे का आप क्या करना चाहते हो? अब जमीन तो गई आपकी, वो जो आपको वापस जमीन मिली है उसमें खेती भी करोगे या नौकरी करोगे? आप जैसे जो युवा लोग नौजवान लोग हैं क्या करना चाहते हो? वहाँ मैम खेती नहीं हो सकती, वहाँ तो खाली ये है कि मकान बनेगा। अच्छा, अगर जो सेक्टर बड़ा है आप देखिए, आप जाकर भी आप गए होगे कि बढ़िया कॉलोनी बसी है। तो करोगे क्या? आप खेती की जमीन चली गई, अब करोगे क्या? तो जॉब करेंगे ना। क्या काम करना चाहते हो आप खेती की जमीन अगर चली गई? बताओ, नौकरी करेंगे यहीं एयरपोर्ट में जो बोला उन्होंने कि आप एक लड़के को जो योग्य है जैसी नौकरी देंगे, नौकरी करेंगे इसी में। जिससे क्वालिफिकेशन है उस तरीका की नौकरी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्वालिफिकेशन के तरीका से उन्होंने बोला है, कागज लिए हैं। किसान आदमी है, भैंस भी पालेंगे, दूध भी बेचेंगे, हमारा महंगा बिकेगा, कोई भी चीज़ बिकेगी हमारी महंगी बिकेगी और हमारा भविष्य अच्छा चलेगा, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा चलेगा। कोई दुकान खोलेगा, कोई चाय की दुकान खोलेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। कंपनी एरिया आया, कंपनी एरिया भी तो आ रहा है। अच्छा, हाँ, बालक नौकरी करके रखेंगे हमें। किस तरीके की नौकरी? क्योंकि आपने तो किसानी की है ना। लिखिए बालक है, बढ़िया नौकरी करेंगे, कंप्यूटर की। जैसी क्वालिफिकेशन ऐसी ऐसी नौकरी जैसे क्वालिफिकेशन होगी। जैसे आपने क्या क्या पढ़ाई की है? आपको किस तरीके की नौकरी की उम्मीद? देखो सुनो, हमें जैसी मान लो मेरी क्वालिफिकेशन भी है तो मुझे उसकी इस तरह की नौकरी मिलेगी, इसी तरीके की नौकरी मिलेगी। तो आपको उम्मीद है यहाँ एयरपोर्ट बनने से आपके लिए नौकरियां बने? हाँ मिलेगी। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि ये एयरपोर्ट पे काम करे, किसान में काम करे, खेती में? मैं तो कदे राजी ना हूँ खेती थे, किसान वहाँ में काम करे। The very ambitious and world-class Jewar Airport is coming up barely a stone's throw from these agricultural fields. And this really embodies the main challenge in front of any government. How to strike a balance on the one hand between the rights of farmers in a country which is at the end of the day an agricultural country, and on the other also ensure a better standard of living, modernity as well as progress. Maybe the Jewar Airport and the process through which it has been made possible could serve as a model for the future. With video journalist Sachin Rawat in Jewar, Padmaja Joshi for Times Now.